गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश दिवस मुढ़ कदीम तो कत्तक पुनिया ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਮਿਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚੇਤ ਤੋਂ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਅਮਾਵਸਿਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਲਿਊਨਰ ਕੈਲੰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਊ ਮੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸੋਲਰ ਫੇਸ, ਲਿਊਨਰ ਫੇਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਪੋਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ 23 ਪੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ 1 ਪੋਹ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਚੇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, 1 ਪੋਹ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲੇਗੀ। ਕਦੀ 14 ਨੂੰ, ਕਦੀ 15 ਨੂੰ, ਕਦੀ 16 ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ 5 ਜਨਵਰੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਜੇਕਰ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੈਕ ਡੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
पर जे इस कैलेंडर बनाने वालियां नूं कहा जाए कि तुसी ये दसो कि ये जिहड़ी तुहाडी 5 जनवरी इस साल कह रहे हो, गुरु गोबिंद सिंह जी का जदों प्रकाश होया सी उस दिन किहड़ी तारीख सी? की उस दिन पौष दी 7वीं सी? की उस दिन 23 पौष सी? उस दिन की 5 जनवरी सी? जे इन्हां तिन्नां विचों कोई नहीं सी तो फिर वो किहड़ी तारीख सी? नहीं दस पाते, नहीं दसणगे, कदे भी नहीं दसणगे, क्योंकि ये 5 जनवरी अपनी मन मर्जी दे नाल इस नूं तय किया गया है। दूसरी गल यह है कि कहा जा रहा है जी कि यह कैलेंडर जिहड़ा है ये नानकशाही नाम का कैलेंडर, हालांकि सिर्फ इस दे विच नानक नाम है, इस दे अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो यह गुरु नानक देव जी के प्रकाश तो शुरू हुंदा, ना ये गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाउण तो, या ना ही ये गुरु नानक देव जी दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ इस्लाम का कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है, वो जदों मुहम्मद साहब ने हिजरत की उस तो शुरू होया। राजा विक्रमादित्य ने विक्रमी कैलेंडर शुरू किया। कोई ना कोई कैलेंडर की कोई बुनियाद होंदी है, कोई उसकी शुरुआत होंदी है, कोई इब्तदा होंदी है। पर इस नानकशाही कैलेंडर का गुरु नानक देव जी दे नाल कोई वास्ता नहीं, बल्कि इस दे विच भुलेखा पाण लई ना नानक वरत दिता गया, जिवें निरंकारियां ने भी नानक नाम वरत लिया निरंकारी, और जिवें डेरा सच्चा सौदा ने भी सच्चा सौदा गुरु नानक साहब दा सी उसनूं नाम वरत लिया, या डेरा साहब दे नाम दे उत्ते वो डेरा नाम रख लिया। सो इस तरीके दे नाल इस दे विच कुछ भी नहीं सी। हुण जेकर कहा जाए कि यह कैलेंडर बेहतर है जी, वो इतने सैकंड इन्ने मिली सैकंड का फर्क पै जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अगर ये कहा जाए कल नूं तो फिर कहा जाएगा गुरबाणी संगीत भी इस तो बेहतर जिहड़ा पॉप संगीत है या कर्नाटका म्यूजिक है या होर संगीत इस तो ज्यादा बेहतर है। पर यह गल नहीं हुंदी। कल नूं तो कहा जाएगा कि गुरु साहब दे अस्तर शस्त्र बस्तर या वो जिहड़ी आर्कीटैक्चर है या जिहड़े भी साज हन वो सारे ही असी बदली करिए, असी इस तो बेहतर लैके आईए। सानू बेहतर नहीं चाहिए, सानू गुरु साहब दा चाहिए। वो चीज़ां चाहिए जिहड़ी सानू मुड़ गुरु काल दे विच लै जाण और उत्थे गुरु साहब तक सानू पहुंचा दें। इहदे विच हवाला दिता गया कि जी साल विच 2 वारी गुरपुरब आ जांदा है। किहदा गुरपुरब आंदा साल विच 2 वारी? किहड़े साल विच आंदा है? ईसवी कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर, जिहड़ा कि पोप ग्रैगरी चर्च दे पोप ग्रैगरी ने जिहड़ा लागू किया, उस दे विच साल विच 2 वारी आएगा। पर नानकशाही कैलेंडर बनाने वाले उन्होंने भी अपना कैलेंडर चेत तो फग्गण तक रखिया। पर कितनी हैरानी दी और दिलचस्प गल है, हासोहीणी गल है कि जदों छापते हैं तो वो चेत तो फग्गण तक का नहीं छापते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चेत तो फग्गण तक का कैलेंडर छापती है, पर यह जनवरी तो दिसंबर तक छापते हैं। हुण ये तो उदां दी गल हो गई कि जे कोई कहे भाईजान आप जब पैदा हुए कितने पाउंड के थे, वो कहता मैं 8 पाउंड का था। कहते जी फिर तो अब अगर होते तो बहुत कम होते। क्यों? कहता बीबीसी बता रहा था पौंड की कीमत गिर गई है। सो इदां दियां जिहड़ियां हासोहीणियां जियां दलीलां दे के ये जो प्रमाण की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ उलझाण लई है। सो ये केवल प्रमाण की गल है कि जिहड़ा कैलेंडर छापिया जा रहा है वो भी नानकशाही नाम के थल्ले जनवरी तो दिसंबर तक छापिया जा रहा है। हालांकि नानकशाही नूं भी जिहड़ा गुरु साहब ने अपनाया वो चेत तो फग्गण तक सी, और यह कैलेंडर वालियां दा भी दावा है कि चेत तो फग्गण तक दा। फिर जे तुसी चेत तो फग्गण तक दा कैलेंडर है, सदियां तो यह जिहड़ा कैलेंडर है कदी भी इस विच पौष दी 7वीं 2 बार नहीं आएगी। इत्थे दा पैमाना मील दा है, अमरीका दा, हिंदुस्तान दा वो किलोमीटर दा है। दोनों वख-वख पैमाने हैं, इन्हां नूं एक दूजे दे नाल मिलाया नहीं जा सकता। ये तो इदां दी गल हो गई जिवें इत्थे पैमाना फॉरनहीट दा है, फैरनहीट दा है, ते उत्थे सेंटीग्रेड दा। जे कोई कहे कि इत्थे 80 85 90 डिग्री टैंपरेचर हो जाता है, किसी नूं कुछ नहीं होंदा, ते हिंदुस्तान दे विच 40 45 हो जाए तो तराई मच जाती है। भले मानसो इहदे विच समझण दी लोड़ है, मगर सिर्फ ये है भुलेखा पाना। हुण ये बहाना लाया गया, ये 2 नुकते बहुत अहम हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिवस साल विच 2 वारी आ जाता, जिहड़ा कि सरासर गलत सी।
चेत तो फग्गण वाले कैलेंडर च कदी भी नहीं आएगा। पर मकसद इत्थे कुछ होर है और बहुत गंभीर है और बड़ी गंभीरता नाल यह कहा जा सकता है कि ਜਿਹੜੇ गुरु गोबिंद सिंह जी की हयाती, उन्हां दी बाणी, उन्हां दियां शस्त्र, उन्हां दे अमृत, उन्हां दी हर चीज दे विरोधी हैं, वो इस कैलेंडर के हमायती बन के सामने खड़े हो रहे हैं। इस विच कोई अतकथनी नहीं। ਜਿਹੜੇ गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी के कट्टड़ विरोधी रहे हैं, ਉਹੀ सब तो उच्ची सुर दे विच ਇਹ कह रहे हैं कि असीं 5 जनवरी ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिवस मनाना है। किस ਲਈ? उन्हां दी बाणी की निरादरी करन लई या उन्हां दी बाणी नूं बिल्कुल अणदेखा करन लई। पर इत्थे एक होर दिलचस्प गल है, तुसीं तां कहंदे सी कि साल विच 2 वारी आ गया, हुण ते तुहाडे कैलेंडर दे विच हर महीने दीयां संगरांदां भी 2-2 हो गईयां। इहदा मकसद की होया? इहदा मतलब सिर्फ जिहड़ा है वो कौम विच दुबदा पैदा करनी। दूसरी गल एक होर कहा गया कि कैनेडा की सरकार या होर सरकारां पुछदियां हन कि गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब की तारीख दसो, वो पक्की तारीख असीं नहीं दस पाते। कितनी हैरानी की गल है कि वख-वख धर्मां दे, वख-वख मजहब दे जिहड़े धार्मिक कैलेंडर हन, सरकारी कैलेंडर ग्रेगोरीयन कैलेंडर नाल छपदे हन, वरते जाते हैं, उस विच कोई दुबदा नहीं। पर जितने भी धार्मिक कैलेंडर हैं इत्थे अमरीका विच सब तो ताकतवर कौम जिहड़ी मन्नी जाती है वो है यहूदी। उन्हां दा अपना त्योहार है हानुका, ईसाइयां दा ईस्टर है, या इस तो अलावा महावीर जयंती है, या बुद्ध जयंती है, या ईद उल मिलाद है, या होर भी जितने भी त्योहार हैं। कोई भी त्योहार ईसवी कैलेंडर दे नाल या ग्रेगोरीयन या ईसाई कैलेंडर दे नाल उहदियां डेटां बिल्कुल मुकर्रर रही हैं। पर एक ही खास प्रिविलेज या मुसीबत सानू पैंदी है, सिर्फ साडे कोलों पुछया जांदा है, किसी होर कोलों नहीं पुछया जांदा। बल्कि ये जिहड़ी तारीख फिक्स करन दी जिहड़ी गल कीती जा रही है, दिल मुहम्मद पसरूरी एक इतिहासकार होया है, उसने बहुत सोहना कहा है। कहता है कि इतना ज्यादा सिखां ने पंजाब नूं तबाह कीता है कि हुण तां एक नवां कैलेंडर शुरू हो जाना चाहिए जिस दा नां रख देना चाहिए जहाने खराब शुद्ध। ये नवां कैलेंडर जिहड़ा शुरू कर देना चाहिए। एक होर भुलेखा पाउण दी कोशिश की जाती है कि यह कैलेंडर हिंदुओं का कैलेंडर है, ये साडे न्यारेपन दे विरुद्ध है। इस नाल साडी वखरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी जे असीं गुरु साहब दा अपनाया होया कैलेंडर लै लवांगे। ते जदों उन्हां नूं पुछया गया कि गुरु साहब ने तां सारे सिखां ने हुण तक 1999 तक इस विच कोई दुबदा नहीं सी कि हुण ही ये मुसीबत आएगी, तां उस दे ते इन्हां दे एक बहुत प्रमुख विद्वान हन, विद्वान कहा जा सकता है, वो कहते हैं जी कि गुरु साहब नूं पता सी कि कैलेंडर गलत है, पर उन्हां कोल टाइम नहीं सीगा कि वो इसनूं दुरुस्त कर सकन। गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 239 साल का समा है गुरु साहब नूं इस हयाती विच, इस जगत विच रहण दा। उन्हां कोल टाइम नहीं मिलिया, बाबा बंदा बहादुर नूं नहीं मिलिया, पुरातन सिंघां नूं नहीं मिलिया। हुण दे सिख इतने सियाणे हो गए कि इन्हां ने उस सारी चीज नूं ताराशाही करन दी गल कर ली। एक होर अहम नुकता है कि बार बार कहा जा रहा है कि 2003 वाला मूल नानकशाही कैलेंडर लागू करो, मूल नानकशाही कैलेंडर 2003। श्रोमणी कमेटी ने तां 1999 विच कैलेंडर छापिया सी और उस दे उत्ते जंतरी लिखिया सी। हालांकि जंतरी नहीं है, ये सिर्फ तरीखा देखण दी एक साधन है। जंतरी तां एक जंतर मंत्र तंत्र दा एक अंग है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, लिखे जंत्र केते पढ़े मंत्र कोटंग, बचेगा न कहू करे काल चोटंग। सो ये जिहड़ा है ये भी गलत है। 1999 दे विच बनिया, उसनूं ना प्रवान कर दिता गया। उस वेले दे तत्कालीन जथेदार उन्होंने रद्द कर दिता। 2003 विच जदों इसनूं फिर लैके आंदा गया और जिस तरीके नाल पास किया गया, उस वेले दीयां रिपोर्टां भी हन, अखबारी रिपोर्टां भी हन कि किसी ने उसकी कापी भी नहीं दिती गई।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਮਤ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਮਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।